नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान और फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंडे का बीदर दौरा, किया गया भव्य स्वागत। भालकी में आज कर्नाटक सरकार के द्वारा स्त्री शक्ति की गई शुरुआत, महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा को चलन दिया गया। कर्नाटक में आज से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महिलाओं में बनते पास, बीजेपी पर लगाया आरोप। बीजेपी ने की सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के मॉडल को किया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन, मिशन कर्मयोगी की ओर एक और कदम। हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं 100 है, रामलीला मैदान पर आयोजित महारैली में बरसे अरविंद केजरीवाल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान और फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंडे मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार आज बीदर के दौरे पर आए। बीदर के शाहपुर गेट पर इन दोनों मंत्रियों का पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भव्य स्वागत किया। इन दोनों नेताओं के बीदर आगमन पर उनके प्रशंसकों में भरपूर जोश देखा गया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान और फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने केपी न्यूज से खास बातचीत की। केपी न्यूज की टीम की एक खास रिपोर्ट देखी। ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮೊದಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಈ ಜನ್ಮ ಕಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಏನೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮದೇನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ। ಈಗ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನಿವತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಂದರೆ, ಮನವಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸರ್, ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಯಾವುದೇ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸೃಷ್ಟಿ। ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। 136 ಜನ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ 30-30 ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು। ಜನರ ಏನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹಗರಣ ರಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ
ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್? ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ आज रविवार 11 जून को चितगुप्पा के बस स्टैंड में कर्नाटक सरकार की शक्ति योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। चितगुप्पा के तहसीलदार रविंद्र दामा ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद अकरम पाशा, सीपीआई महेश गौड़ा पाटिल, टीएमसी हेल्थ इंस्पेक्टर वैशली, बस डिपो के अकाउंट सुपरवाइजर विनोद के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿತಿನವ್ರು ಅಂದರು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಗ್ಬರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ. ಯಾವಾಗ ಜನಸ್ಪರ್ಧ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಬಸ್ ಅದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಏನ ಇದ್ರು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಅದ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಹೋಗಿ ಇದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಾಂಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ भालकी में आज रविवार 11 जून को कर्नाटक सरकार के द्वारा शक्ति योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की शुरुआत की गई और भालकी बस स्टैंड में बसों को चलन दिया गया। इस अवसर पर डिपो मैनेजर भद्रप्प हुदुगे, भालकी के तहसीलदार पीजी पवार, भालकी टाउन के पीएसआई विश्वाराध्या दीपक थमके और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बस को दुल्हन की तरह सजाया गया और भालकी से उमनाबाद, भालकी से बीदर, भालकी से औराद जाने वाली बस में कंडक्टर 0 रुपए की टिकट महिला को देकर स्त्री शक्ति को चलन दिया गया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुएल की रिपोर्ट। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯೊಳಗಷ್ಟೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ₹1 ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಂತೀರಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತೇನ್ರಿ ಅಂತ. 3 ತಿಂಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಅದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸ ಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು, ಅದು ನೀವೇ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने रविवार को शक्ति योजना की शुरुआत की। इसके तहत सरकारी कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, केएसआरटीसी, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बीएमटीसी और अन्य निगमों में सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने महिलाओं को मुफ्त टिकट जारी किए। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस अवसर पर उपस्थित रहे। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले 30% महिलाएं बस से यात्रा करती थी, लेकिन भाजपा सरकार में महिलाओं ने बस से यात्रा करना कम कर दिया। अब मात्र 24% महिलाएं ही बस से यात्रा करती हैं। सिद्धरामैया ने आगे कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि महिलाएं अपने घरों से निकले। सीएम ने रविवार को बस यात्रा करके महिलाओं को खुद पास दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी रहे। महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही बताया था कि सुबह 11 बजे 5 में से गारंटी शुरू करेंगे। सभी महिलाएं एसी और वोल्वो के अलावा सभी राज्य की स्वामित्व वाली बसों में राज्य के भीतर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें एक्सप्रेस बस सेवाएं भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तिरुपति की यात्रा मुफ्त नहीं होगी। इसके लिए महिलाएं मुलबगल आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे कोलार जिले तक जा सकती हैं और उसके बाद यात्रा फ्री नहीं होगी। हालांकि पड़ोसी राज्यों के अंदर 20 किलोमीटर तक की यात्रा करने वालों से शुल्क नहीं लिया जाएगा।
शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से डरती है, जो एक अच्छी बात है। संजय राउत ने कहा कि भाजपा को उद्धव से पूछे गए सवालों के बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अपने ही जाल में फंस गई है। राउत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, यह अच्छा है कि भाजपा उद्धव ठाकरे से डरती है। उसने पार्टी में फूट सुनिश्चित की, इसका नाम और चुनाव चिन्ह देशद्रोहियों को दिया। उद्धव ठाकरे और शिवसेना असली का डर अभी नहीं गया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 20 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 7 मिनट उन्होंने उद्धव जी पर खर्च किए। उनका भाषण हास्यास्पद था। मैं सोचता हूं कि नांदेड़ में उनकी रैली भाजपा के महासंपर्क अभियान का हिस्सा थी या उद्धव की आलोचना करने का मौका। यह रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक सियासी अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी ने रविवार 11 जून से सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल नाम का एक अभियान शुरू किया है। बीजेपी ने कनॉट प्लेस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर का मॉडल रखा। बीजेपी के मुताबिक इस मॉडल को हर दिन अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा। दरअसल बीजेपी ने रविवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के मॉडल को कनॉट प्लेस पर रखा। इतना ही नहीं, नेताओं के घर के मॉडल के साथ लेते हुए फोटो भी वायरल हो रही है। एक फोटो में केजरीवाल के घर के मॉडल के साथ वीरेंद्र सचदेवा सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार 11 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को पीएम मोदी के मिशन कर्मयोगी की दिशा में अगला कदम माना जा रहा है। सम्मेलन में प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में केंद्रीय, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान जैसे कई प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सम्मेलन का हिस्सा हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर महारैली का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने संबोधित किया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई गई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि इस साल बाद आज हम रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। 12 साल पहले करप्शन के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। आज इस देश से एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया है। हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं है, हमारे पास 100 सत्येंद्र जैन है। आप एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में विकास के काम नहीं रुकेंगे। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतने स्कूल बना दिया, आपने क्या किया? उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी पिछले साल मैं गुजरात का चुनाव लड़ने गया, वहां पे हर आदमी, गुजरात के हर आदमी के मुंह पे था, अरविंद जी आपने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, आपने दिल्ली में स्कूल बच्चों की शिक्षा इतनी अच्छी कर दी। तो एक दिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मैं भी जाके स्कूल में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढने से उनको एक स्कूल नहीं मिला जिसमें मोदी जी फोटो खिंचवा ले। एक स्कूल, 30 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, एक स्कूल नहीं मिला। इनको एक स्टूडियो के अंदर टेंट लगा के एक क्लास, फर्जी क्लास बनानी पड़ी। 10 बच्चे बुलाए, डेस्क लगाए, वहां पे मोदी जी एक बच्चे के साथ बैठे और उन्होंने फोटो खिंचवाई। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहां है? तो अब मोदी जी ने तय किया मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सत्येंद्र जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं है, हमारे पास 100 सत्येंद्र जैन है। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए, काम नहीं रुकेगा दोस्त। जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अब ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ऑर्डिनेंस से ये सारा काम रोकना चाहते हैं। आज यानी कि 11 जून को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन है। लालू यादव के जन्मदिन पर उनका पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना के बीरचंद पटेल पथ स्थित आरजेडी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया। इसके अलावा राबड़ी आवास पर सुबह से लगातार लोगों और समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। लालू यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। देर रात राबड़ी आवास पर लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के बीच बर्थडे केक काटा। इस मौके पर लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत पूरा परिवार वहां मौजूद था। इस अवसर पर फैमिली ग्रुप फोटो ली गई। हालांकि इस तस्वीर में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की कमी खल रही थी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर कर निशाना साधा। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट समेत देश के शीर्ष पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस बीच ये खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 पहलवानों से यौन शोषण संबंधी फोटो, ऑडियो और वीडियो वाले सबूत मांगे हैं। इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला बरस पड़े। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, जिन बेटियों के मेडल जीतने पर तालियां बजवाई, आज वही बीजेपी सांसद के कुकृत्य के खिलाफ न्याय मांग रही है, मगर बेटियों से यौन शोषण का सबूत मांगा जा रहा है। 21वीं सदी के महामानव का मन कितना कलुषित, कलंकित और दाग भरा है, इसका प्रदर्शन कर रहा है। इससे हमें मुक्ति लेनी होगी। अंधा कानून, हम और गिरफ्तार जैसी फिल्में साथ करने के बाद दिग्गज मेगास्टार रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की एक बार फिर से जोड़ी बनने की खबर सामने आ रही है। जी हां, रिपोर्ट्स के माने तो रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की 32 सालों बाद ऑन स्क्रीन जोड़ी बनने वाली है। कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत फिल्म थलाइवर 170 में नजर आ सकते हैं। हालांकि ना तो रजनीकांत और ना ही अमिताभ बच्चन या मेकर्स से इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने आई है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइन। कर्नाटक के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान और फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंडे का बीदर दौरा, किया गया भव्य स्वागत। भालकी में आज कर्नाटक सरकार के द्वारा स्त्री शक्ति की गई शुरुआत, महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा को चलन दिया गया। कर्नाटक में आज से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महिलाओं में बनते पास, बीजेपी पर लगाया आरोप। बीजेपी ने की सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल, जब अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के मॉडल को किया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन, मिशन कर्मयोगी की ओर एक और कदम। हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं 100 है, रामलीला मैदान पर आयोजित महारैली में बरसे अरविंद केजरीवाल।
केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।